Hello friends, welcome to TechCube Gate classes. My name is Professor Vivek Singh Rathore and I am Assistant Professor at Government Engineering College Bilaspur, Chhattisgarh, and I am dealing with Signal and System subject. This is the 30th lecture of this lecture series, and in this module number 4, I will deal with many of the part that is distortionless system and correlation of signals. These part. I hope you must be seeing this all lecture and you have completed almost all lecture and now you have come to 30th lecture. So let's go get started. Okay. So see, today what we'll be seeing, first of all we'll be seeing distortionless system. So before seeing distortionless system, I'll tell you about a response of a system which we have already seen in LTI system, but we'll see with Fourier transform. So see, as you know that whenever a system is there, LTI system, and we have given input as, let's suppose x of t will be their input, and let's suppose output will be y of t will be the output, and impulse response of this system will be h of t. So generally what you say that y of t will be equal to x of t convolution with h of t. This is the thing which we have studied in our module number 2. Now in the last lecture we have already seen the convolution property of Fourier transform. That means that y of omega is equal to x of omega into h of omega. This we have seen in the last lecture, convolution property. So ultimately this h of omega, if you can say h of omega, if you want, you can write it as y of omega by x of omega, because means the Fourier transform of output by input is equal to the Fourier transform of the LTI system. This is there. Okay, so h of omega, whatever this value will come, okay, whatever this value will come, will have two component. That is, it will have some magnitude component and it will have some phase component. Obviously the response, the h of omega means the what we say impulse response, frequency domain of impulse response will have both component. So it will have some phase and it will have some magnitude. Definitely it will have it. So see what we can write here, we can write also as h of c. Now what I wanted to tell you from the story is y of omega is equal to x of omega into h of omega. Then what if I ask you the magnitude of y of omega, means magnitude of output, you will tell that as this is multiplied by this will have x of omega will have its magnitude and phase, h of omega will have its magnitude and phase. So both magnitude will be multiplied, so x of omega multiplied by h of omega. Okay, and if you say the phase, whatever the phase will be there, means y of omega phase if you want, so obviously the phase will be x of omega plus h of omega. The phase will be get added up. So this portion only I wanted to tell you from the story, that whenever a response will be taken in the frequency domain, the magnitude part will be get multiplied of in frequency domain and the phase part will get added up. Okay, so this is there. Now we'll start with our system that is called as distortionless system. Distortionless system. So distortionless, you know what is distortion? Distortion can happen in any of the thing, like in magnitude also and in phase also. Let's suppose you have given an input to a LTI system. This is your LTI system, and let's suppose system, you have given a constant magnitude DC signal as an input, and if you are getting output as like this, like this, like this, like this, so there is a distortion in the magnitude. Or let's suppose the phase is there. Okay, let's suppose phase of is there like this, phase is there, and now you are getting output as, let's suppose, like this, like this, like this, like this. So there is a distortion in the phase, or there is a distortion in the magnitude. So
This generally happens. That is why we are eyeing for a distortionless system. Means we are thinking for a LTI system which is distortionless. So see, now I will tell you about the system. Let's suppose this system is there. Okay, this system is there. This is your LTI system, and you are taking output from here. Let's suppose you are giving input as f of t. Okay, now generally what happens, that this system will definitely introduce some magnitude. In this will introduce maybe its magnitude will be 1, so ft magnitude into 1 will be this one. So ultimately what I wanted to say, a system will introduce some magnitude in same phase, maybe 1 only, maybe 0 phase only, but we assume that this introduces some magnitude and introduces some magnitude and phase in the signal. So we can write here output as a into f of t minus t naught. This is your output of a LTI system. This generally happens. Maybe this a can be 1. Maybe this will not introduce any magnitude distortion. It will create only 1. So, but ultimately for general case we are dealing with that any signal f of t, when it is given as an input to LTI system, the output will be a into f of t minus t naught. Okay, now what you, if you ask in frequency domain, we'll see f of omega. If we give input, what we'll get, a is a, f of omega will be there, and I know you know the time shifting property, so you can tell e to the power minus j omega t naught. Okay, so ultimately this is your output when we give f of omega input. So you know impulse response is nothing but h omega is nothing but your output, frequency domain output by frequency domain input. So you can tell as a into f of omega e to the power minus j omega t naught, and this will be equal to by f of omega. Then this portion will get cancelled up, and then what we will get is h of omega will be a into e to the power minus j omega t naught. This is the input. Not this is not the input, this is the impulse response in frequency domain of a LTI system. And if you want it in time domain, you can take it as inverse Fourier transform. You will get a to e to the power minus j omega t naught can be written as a delta t minus t naught. A delta, because its Fourier transform will be a e to the power minus j omega t naught. So actually what, this is the impulse response for a system. This is a impulse response for a system. I'm not talking now about distortionless. I'm now talking about only system. This is the system. This is the response of a impulse response of a LTI system. Now what is happening, its magnitude will be, if we will ask impulse response magnitude, we'll see h of omega is this one. Okay, so what will be the magnitude of this? So we can say that h of omega magnitude will be equal to a. This is magnitude. And what will be the phase value? See, the phase value will be a e to the power minus j omega t naught. So the phase will be h of omega, phase will be minus omega t naught. Okay, this will be the phase. Obviously e to the power minus j omega t was the phase, so here omega t naught is the phase and minus sign is there. So ultimately for a LTI system, the magnitude response will be obviously a, and the phase response will be minus a omega t naught. Now I am telling this is the impulse response or magnitude response and phase response of a LTI system. But now we will deal with the magnitude and phase response for a distortionless system. So for the condition for a system, okay, a condition for an LTI system, LTI to be distortionless system, डिस्टॉर्शन, हम चाहते हैं कि एक एलटीआई सिस्टम डिस्टॉर्शनलेस बन जाए, तो हमको क्या होना, क्या कंडीशन होगी? उसकी कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन विल बी कि जो आपका द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स इज देयर ना, दिस इज मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, तो आपका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स शुड बी कांस्टेंट. ऑब्वियसली बात है कि इनका जो रिस्पॉन्स, ये मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है एलटीआई सिस्टम को बीच का, द
पोर्शन शुड बी कांस्टेंट, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है ये वेरी कर रहा है। इफ योर सिग्नल इज कांस्टेंट, इफ यू आर गिविंग अ डीसी सिग्नल एंड देयर इज अ fluctuation in the magnitude of LTI system, then obviously the output will also get fluctuated. तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, अगर हमको कांस्टेंट डीसी सिग्नल दे रहे हैं तो हमको कांस्टेंट डीसी सिग्नल आउटपुट में मिलना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन फॉर LTI सिस्टम, ये कुछ गड़बड़ी ना करे, है ना। सो हम ये चाहते हैं कि डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम के लिए मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स शुड बी कांस्टेंट। एंड दूसरी बात, जो फेस रिस्पॉन्स है, फेस रिस्पॉन्स मस्ट बी लीनियर। ये एक लीनियर क्वांटिटी होना चाहिए। लीनियर फेस रिस्पॉन्स मतलब ये है कि देखिए, फेस इज हियर, इट इज स्लोप इज डिक्रीजिंग। नाउ इफ it is not constant, it is not linear, it is not like a non-linear, then it will create so much, it will have a delay value and everything will be get delayed, maybe delayed, maybe advanced. And you know that for a linear time invariant system, advanced things we cannot calculate it, so that is not allowed. So that will be a non-causal system. So see, the two most condition for a system to be, for a LTI system to be distortionless, अगर कोई LTI system को distortionless बनाना है तो उसका magnitude response should be constant and the phase response should be linear, okay। तो magnitude response constant होने का मतलब ये है कि उसका magnitude should be like this, magnitude ऐसा होना चाहिए और phase उसका ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए उसका फेस, मतलब यहाँ पे जो इसका स्लोप हो माइनस टी नॉट हो, कि माइनस टी नॉट के स्लोप के साथ ये गिरता चला जाए, और ये इसका जो एक्सेस है वो ओमेगा होगा, ये वाला जो एक्सेस है ये भी ओमेगा है, लेकिन इसका जो ये है दैट इज एच ऑफ ओमेगा, दिस इज एच ऑफ ओमेगा बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड। सो आइडल, दिस इज द कंडीशन, आइडल कंडीशन फॉर अ डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम, ओके। सो देखिए ये स्लोप माइनस टी नॉट क्या दिखा रहा है कि हर उस पॉइंट पे, हर एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ओमेगा, हर फ्रीक्वेंसी पे एक माइनस टी नॉट का डिले हो रहा है। ये तो हमको चाहिए एक्चुअली, हमको क्या चाहिए यहाँ पे ए डेल्टा टी माइनस टी नॉट का, दिस मीन्स दैट एट ईच फ्रीक्वेंसी देयर शुड बी अ डिले ऑफ माइनस टी नॉट, थोड़ा सा माइनस टी नॉट का डिले होना चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसा, अगर ये ऐसा कुछ हो गया, मान लो ऐसा 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 हो गया, तो स्लोप, द स्लोप वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट एंड द स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब है कि देयर विल बी डिफरेंट डिले एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब एक पर्टिकुलर हो सकता है 50 हर्ट्ज पे कुछ अलग डिले है, 70 हर्ट्ज पे कुछ और अलग डिले है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट डिले एंड दिस विल बी मे बी दिस कैन बी, ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्लस टी नॉट वाला भी मिल जाए, मतलब। तो ये जो ये पोर्शन है इसको हम लोग नॉन लीनियर बोलते हैं और ये अलाउड नहीं है डिस्टॉर्शनलेस के लिए, आपको डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए। सो दिस शुड बी हैपन। एंड आप ये बोल रहे हो कि ये जो ऐसा ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव क्यों नहीं है, ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिले हमारा माइनस टी नॉट ही होना चाहिए। अगर हम डिले को प्लस टी नॉट स्लोप के साथ, हम अगर फेस को हम इफ यू वांट आवर एलटीआई सिस्टम कि अगर वो ऐसा प्लस ओमेगा, मतलब ओमेगा टी नॉट का रखे यहाँ पे, मतलब ओमेगा है जो स्लोप है प्लस टी नॉट, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हर फ्रीक्वेंसी पे एक जो हर फ्रीक्वेंसी पे प्लस टी नॉट का डिले हो रहा है, प्लस टी नॉट का डिले मतलब एडवांस होता है, मतलब आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे और आगे की वैल्यू पे वो शिफ्ट होता जा रहा है, तो ये तो एडवांस हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपको, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू आल्सो कि व्हाई योर फेस रिस्पांस ऑफ अ एलटीआई सिस्टम फॉर अ डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम शुड बी लीनियर। तो लीनियर क्यों होना चाहिए, क्योंकि भैया अलग अलग डिले प्रोवाइड मत करे, इट शुड नॉट प्रोवाइड डिफरेंट डिफरेंट डिले फॉर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाई द स्लोप इज negative only, why the slope is not positive, because we don't want advanced, we cannot calculate advanced value, okay। So that is why for each and every value of omega we are doing delay of minus t naught, ये एक linear quantity होना चाहिए, है ना। तो ये basically आपका distortionless system के लिए है। And if you have if you are asked that why the magnitude is constant only, why magnitude is not something increasing, something decreasing, why it is not like this, so you can tell that constant nature of magnitude response just tells us about that
that if you are giving an input signal, input you are giving, maybe it is varying like a sinusoidal, it may be exponential, whatever signal is input to a system, the magnitude response of a LTI system should be, or a distortionless system should be like that it should provide constant magnitude for each frequency. मतलब वो हर frequency के लिए एक constant magnitude दे। ऐसा मत हो कि भैया आपका ही ये ऐसा है कि वो कुछ ऊपर नीचे दे रहा है, तो फिर तो सिग्नल बेचारा कुछ कर नहीं रहा है, आपका सिस्टम ही सब कुछ कर दे रहा है, उटपटांग काम कर रहा है। तो ऐसा होना चाहिए आपका एक आइडल आदर्श डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम कैसा होना चाहिए कि वो मैग्नीट्यूड में ना it should give constant magnitude for each and every frequency, and should give constant delay of minus t naught at each frequency. This should be a condition for ideal distortionless transmission or ideal distortionless system. Now you'll ask, one more question will be there, that what is the bandwidth of this distortionless system? Okay, so if you will ask what is the bandwidth of this distortionless system, so first of all you should know what is bandwidth. So bandwidth is, see, whenever you are giving input, or let's suppose that your signal is there and its frequency domain is varying, it's having frequency component from this value to this value, component is there, and okay, so bandwidth is the width of those group of frequency which a system is capable of making available at output. मतलब ऐसे group of frequency जो output पे आ सकते हैं, which can come at the output of a system, that is called as bandwidth. मतलब वही उस ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हम आउटपुट पर प्रोड्यूस कर सके वो हमारा बैंडविड्थ होता है। सिंपल सा बात है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ एच ऑफ ओमेगा शुड नॉट इक्वल टू 0, जिस पे वो इक्वल टू 0 नहीं है। जैसे मान लीजिए ये है, इस पोर्शन से इस पोर्शन में ये आप में इसका कुछ ना कुछ इट इज हैविंग सम ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। ये 0 तो नहीं है, लेकिन इस पोर्शन पे ये मैग्नीट्यूड इसका 0 हो गया, तो मॉड ऑफ एच ऑफ ओमेगा जहां वैल्यू 0 हो जाता है वो उसको कंसीडर नहीं करता है। दोज ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच मॉड ऑफ एच ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, दैट ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज बैंडविड्थ। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर माइनस ओमेगा आई है और प्लस ओमेगा आई है, तो its bandwidth will be equal to 2 into omega i, मतलब this minus of this, तो आपको बैंडविड्थ आ जाता है। तो बैंडविड्थ का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि बैंडविड्थ क्या होता है, विड्थ ऑफ दोस ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द मैग्नीट्यूड रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका बैंडविड्थ होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम? तो बैंडविड्थ ऑफ डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम अगर आप देखें हैं, सी मैंने आपको ये बताया कि हर फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, हर मैग्नीट्यूड पे, हर फ्रीक्वेंसी पे देयर शुड बी अ डिले ऑफ टी नॉट। कहीं मैं ऐसा एवर आई टेल यू दैट फॉर ओनली ग्रुप दोज ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे वो मैग्नीट्यूड 1 दे, बाकी सब में 0 दे, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए आइडल डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम का जो बैंडविड्थ होता है वो इनफाइनाइट होता है। मतलब वो हर फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी, फॉर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी आल्सो इट शुड provide constant magnitude response and minus t naught delay response for each frequency। ये हमारा phase response should be linear। तो ये बैंडविड्थ आपका क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन ट्रांसमिशन के लिए इनफाइनाइट होता है। ठीक है, एलटीआई सिस्टम का इनफाइनाइट होता है। सो ओके, अगर ऐसा है तो चलिए हम विल डील विथ वन मोर टाइप ऑफ filter which we already study in our electronics and communication, we'll see here also, that is called as low pass filter। low pass filter, you must know about this low pass filter। this type filter क्या करता है, छन्नी है ना, जैसे हम चाय वाय छानते हैं तो चाय का वो जो बचा होता है ना, चाय पत्ती, वो सब रह जाता है और चाय आ जाता है नीचे। कुछ चीज को हम फिल्टर कर देते हैं, रोक देते हैं, पानी का फिल्टर होता है। वैसे ही हम विल डील विथ इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, विल डील विथ सम फिल्टर जो पर्टिकुलर कुछ ग्रुप ऑफ विच allows some group of frequency to pass, some group of frequency to block। this is called as filter। the low pass filter, what it will pass, it will pass, yeah, it will allow only low frequency component।
ठीक है, ये एक सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ही पास करेगा, उस टाइप के फिल्टर को लो पास फिल्टर कहते हैं, है ना। तो लो पास फिल्टर जनरली देखिएगा, अगर आप यहाँ पे जैसे एक इनपुट देते हैं, इफ यू आर गिविंग इनपुट ओके टू अ लो पास फिल्टर, लेट सपोज कुछ इनपुट है, मान लीजिए x ऑफ t है, और वी आर गेटिंग y ऑफ t एज आउटपुट, इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी x ऑफ ओमेगा, वी आर गेटिंग y ऑफ ओमेगा। और आपका लो पास फिल्टर का रिस्पांस कैसा है? लो पास फिल्टर का रिस्पांस कुछ ऐसा है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा, यू नो। लेट सपोज कि इसका कुछ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेट सपोज ओमेगा सी है, इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी। आप इस चीज को समझ रहे होंगे, और इसका ये होता है मैग्नीट्यूड 1। you must be knowing that this portion is called as pass band, मतलब ये बैंड ऐसा है, बैंड मतलब ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो पास होने देगा, जो पास होगा। और ये वाला जो है वो है आपका स्टॉप बैंड, जिसको वो रोक देगा। तो अल्टीमेटली जब x ऑफ ओमेगा विल बी passed to low pass filter, so whatever x of omega frequency component may be, but only this low pass filter will allow its only frequency component from minus omega c to plus omega c to pass, and output will have only this frequency component. दिस इज कॉल्ड एज लो पास फिल्टर। आपको पता होगा कि बैंड पास फिल्टर भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हाई पास फिल्टर, ठीक है, नॉच फिल्टर होता है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर होता है, तो ये सारे फिल्टर होते हैं, उम्मीद है आपको पता होगा। तो ठीक है, ये होता है क्योंकि इससे हम लोगों को एक चीज सीखना है। ऐसा बोला जाता है कि लो पास फिल्टर को कभी फिजिकली रियलाइज नहीं किया जा सकता वगैरह, इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो क्यों ऐसा होता है, क्यों हम लो पास फिल्टर को फिजिकली रियलाइज नहीं कर पाते, वो चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देयर इज x of t, x of omega, y of t, y of omega, this is your pass band and stop band, okay fine, and this is your cut off frequency ना, ये आपका है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद कुछ चीजें पास नहीं होती है ना, या पास होती है जो भी, तो ये एक ट्रांजिशन वाला फ्रीक्वेंसी होता है, दिस इज कॉल्ड एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके फाइन। अब आपको यू नो दैट एच ऑफ ओमेगा विल ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ एच ओमेगा, एक मैग्नीट्यूड होता है एच ऑफ ओमेगा का, एंड देयर इज अ फेस रिस्पॉन्स ऑफ एच ऑफ ओमेगा, ये हमको पता होता है। अच्छा, तो ये देखिए, इसका ये तो आपको पहले से पता चल गया कि भैया ये जो लो पास फिल्टर है ना, कुछ ऐसा दिखता है आपका लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऐसा है। अब आप वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल टाइप ऑफ सिग्नल एंड उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म देखे हैं। तो आपको मैंने बताया होगा कि एक गेट पल्स का जो गेट पल्स होता है, लेट सपोज माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, इट्स लेट सपोज मैग्नीट्यूड इज 1। इसका हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी से जब हम टाइम डोमेन में कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो इफ इसका अगर हमको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इफ यू वांट टू फाइंड आउट, हाउ कैन वी फाइंड आउट, यू नो दैट, सी आपको पता है कि जब टाइम डोमेन में गेट पल्स, whenever gate pulse is there in time domain and we take frequency Fourier transform, we get sampling s of t। आपको ये पता है शॉर्ट फॉर्म पे कि अगर आप माइनस t/2 से t/2 लेते हैं और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, यू गेट t इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू t/2। मतलब एक गेट पल्स जो विच इज इन टाइम डोमेन and its frequency transfer Fourier transform will be sampling of, मतलब सैम्पलिंग सिग्नल हमको मिलता है। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी में हम जब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में हम गेट पल्स लेंगे तो इसका हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब हम टाइम डोमेन में लेंगे, तो ऑब्वियसली हमको टाइम डोमेन में सैम्पलिंग सिग्नल मिलेगा। हो सकता है कुछ उसका मैग्नीट्यूड अलग हो वगैरह, लेकिन सैम्पलिंग सिग्नल हमको मिलता है। तो हम यहाँ पे सैम्पलिंग सिग्नल की बात करते हैं। देखिए इस सिग्नल को हम कैसे बोल सकते हैं, देखिए, सो विल कैलकुलेट विद दिस आवर ओन प्रोसीजर। तो आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहे, अच्छा डुअलिटी प्रॉपर्टी बिफोर कैलकुलेटिंग इट, डुअलिटी प्रॉपर्टी आपको याद होगा। डुअलिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर आप भूल गए होंगे तो, एफ ऑफ टी अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका एफ ऑफ ओमेगा है, तो कभी आप एफ ऑफ ओमेगा में एफ ऑफ टी चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा। तो अल्टीमेटली देखिए हम यहाँ पे व्हाट वी वांटेड टू डू इट, एफ ऑफ टी एफ ऑफ ओमेगा कैलकुलेट कर रहा था, है ना। मतलब अगर आप देखें
टी ऑफ सैम्पलिंग, या आप इसको बोल लीजिए ये वाला जो पोर्शन है वेयर माय माउस इज देयर, सो दिस पोर्शन was converted to this of f of omega. This was your frequency domain. Now you want this type of signal in frequency, this type of signal in frequency. So what you need to do, मतलब अगर अपन को f of t को f of माइनस ओमेगा चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सिर्फ f of ओमेगा इसी टाइप का चाहिए आपको, f ऑफ t जिस टाइप का है, f ऑफ t अगर आपका गेट पल्स है उसी टाइप का f ऑफ ओमेगा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ 2 पाई को नीचे ले जाइए, f ऑफ माइनस t ले लीजिएगा, है ना। तो आप एक काम करते हैं, चलिए थोड़ा सा हम इसमें रूबरू होते हैं। तो इसको आप थोड़ा समझिए, ये वाला जो सिग्नल है ना, ये वाला सिग्नल माइनस ओमेगा सी टू प्लस ओमेगा सी वन, दिस वैल्यू अगर हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो जनरली व्हाट विल हैपन, इट विल हैपन एज एरिया आप ले लीजिए, एरिया सामने ले लीजिए तो कितना होगा 2 ओमेगा सी होगा इनटू आपका सैम्पलिंग ऑफ, है ना। यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हियर इट वुड बी ओमेगा इंटू टी बाई टू, मतलब यहाँ पे ओमेगा ये वाला जो टर्म था दिस वॉज इन फ्रीक्वेंसी टर्म, तो ओमेगा पहले आता था और ये वाला जो टर्म है ये आपका बाद में आता था। वैसे ही ये वाला जो टर्म है यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये टाइम डोमेन वाला पोर्शन है, तो टी हम लोग ले रहे हैं, है ना। और इसमें विड्थ बाय 2 आएगा, तो विड्थ कितना होगा 2 ओमेगा सी, 2 ओमेगा सी बाय 2 कितना होता है ओमेगा सी ओनली, तो ये आपका आ गया। अब आपको ये पता है कि ड्युअलिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम इस दिशा में जाते हैं तो ये 1/2 पाई हो जाता है, तो यहाँ पे हम इसको बेसिकली यहाँ पे 1/2 पाई भी लेना था, तब आपका बेसिकली ओवरऑल आता। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। मतलब इस वाले पोर्शन का ये जो सिग्नल है माइनस ऑफ ओमेगा सी से प्लस ऑफ ओमेगा सी वन, इसका अगर आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, ओके, सो व्हाट विल गेट एज ओमेगा सी बाय पाई इनटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा सी इंटू टी, ये आपका फाइनल आउटपुट है इस सिग्नल का। नाउ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट इज, देखिए इसको हम थोड़ा सा प्लॉट करके देखते हैं, है ना। विल प्लॉट ओमेगा सी बाय पाई, इसको हम ऐसे करके यहाँ पे देखते हैं, ओके। मेन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा ओमेगा सी बाय पाई, तो यहाँ पे हम लोग मेन मैग्नीट्यूड ओमेगा सी बाय पाई रखते हैं। सैम्पलिंग सिग्नल कैसा होता है, ऐसा ऐसा टाइप का होता है, तो हम वैसा बनाते हैं। चलिए ये सिग्नल ऐसा हो गया, ये धीरे 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 ऐसा, और ये सिग्नल भी आपका ऐसा हो गया धीरे 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 धीरे, ठीक है। इसको विल इंक्रीज इट, ओके ओके फाइन, दिस विल आल्सो इंक्रीज लाइक, तो आपका ये है फाइनल आउटपुट। ये किस डोमेन में होगा, दिस इज इन टाइम डोमेन, है ना। ये आपका टाइम डोमेन में, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं ना, दिस इज इन योर टाइम डोमेन सिग्नल। मतलब लो पास फिल्टर, आपका आइडल लो पास फिल्टर ऐसा दिखता है टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन में ऐसा दिखता है। अब इसका जीरो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जीरो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इसकी यहाँ पे हम लिखते हैं, ये आपकी इसकी उल्टी होती है पाई बाई ओमेगा सी, फिर 2 पाई बाई ओमेगा सी, 3 पाई बाई ओमेगा सी, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको जब फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट मॉड्यूल आई हैव डील्ड विद इसका जीरो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने का इन फर्स्ट मॉड्यूल, सो यहाँ होगा माइनस पाई बाई ओमेगा सी माइनस 2 पाई बाई ओमेगा सी, लाइक दैट इट विल गो ऑन। अब देखिए, अब बताइए इस चीज को, ये तो टाइम डोमेन में है सिग्नल, टाइम डोमेन में दिस सिग्नल इज हैविंग सम वैल्यू इन द फॉर t इज लेस देन 0, मतलब h ऑफ t, आपका जो h ऑफ t, क्योंकि आपका LTI सिस्टम है h ऑफ t, जिसका h ऑफ ओमेगा आपने ये निकाला है h ऑफ ओमेगा, है ना, ये है बेसिकली h ऑफ t। तो h ऑफ t इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर t इज लेस देन 0, जब t इज लेस देन 0 इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो मतलब ये तो बिल्कुल कहीं से भी कॉजल वाला बात ही नहीं हुआ, इट इज अ नॉन कॉजल। आप हम वी हैव स्टडीड आवर सिस्टम अर्लियर, सो इट इज अ नॉन कॉजल सिस्टम, एंड व्हेनेवर योर सिग्नल इज योर सिस्टम इज नॉन कॉजल, मतलब आप नॉन कॉजल का मतलब सीधा सीधा है कि इट इज नॉट फिजिकली रियलाइजेबल, ये फिजिकली आप इसको रियलाइज नहीं कर सकते, ये सिस्टम को, नॉन कॉजल सिस्टम को हम कभी भी फिजिकली रियलाइज नहीं कर सकते जब तक वो रिकॉर्डेड फॉर्म पे ना हो। तो इसीलिए जनरली इसको कहा जाता है, देखिए
इस सिग्नल को कहा जाता है लो पास फिल्टर को कि अगर हम देखो कहीं पे थोड़ा मोड़ा हम शिफ्ट भी कर देना, मान लीजिए ठीक है, ओमेगा माइनस टी नॉट हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट भी कर दें, तो भी इसका कितना सारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जो पूरा आपका नेगेटिव में है, ठीक है, इट विल बी ऑलवेज नॉन जीरो फॉर अ नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो सिस्टम will always be remain as non causal and low pass filter will be non physically possible, ये कभी physically possible नहीं हो सकता आइडल लो पास फिल्टर। इसीलिए आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये हम लोगों ने आइडल लो पास फिल्टर कहा है। आइडल लो पास फिल्टर विल अलाउ द फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट टू पास, ये हमारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जिसमें पास होगा। ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी को हम लोगों ने टाइम डोमेन में ले आया, टाइम डोमेन में प्लॉट किया, तो हमको पता चला कि इसके इट इज हैविंग सम कंपोनेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड आल्सो एंड दैट इज नॉट नॉट बिल्कुल इट इज नॉट रियलाइजेबल। सो लो पास फिल्टर इज फिजिकली नॉट रियलाइजेबल, ये आप आंसर अपने इंटरव्यू में जरूर बोल सकते हैं, है ना। तो then if it is not physically realizable, then how we do it, how we calculate low pass filter and why how we do it। so देखिए लो पास फिल्टर प्रैक्टिकल हम लोग बनाते हैं, प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर, practical low pass filter, how does it look? So practical low pass filter can be seen as C, ये एक R होता है और ये एक C होता है, this is our practical low pass filter। ओके, लेट्स सपोज दिस इज R एंड दिस इज C। इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तो आपको पता होगा, मेरे ख्याल से आपको निकालना आता होगा अगर लाप्लास आप पढ़े होंगे या कुछ भी, तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो बाद में आप इसको देख सकते हैं। इसका जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो भी R ही होगा, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा 1/j⍵c। दिस इज इन फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट इट कैपेसिटर एज 1/j⍵c, है ना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो इसकी वैल्यू लिखते हैं वो होता है एक्स सी होता है रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, और रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है कि आप 1/ω_c हम लोग पुटअप करते हैं, है ना, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω_c। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस हम चाहते हैं तो वो कितना होता है ओमेगा इंटू एल, तो यहाँ पे j इंटू एक्स सी हो जाता है ना, 1/j इंटू एक्स सी, और यहाँ पे हो जाते हैं j इंटू एक्सएल होता है, ठीक है। तो ये है प्रैक्टिकल, दिस इज प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर। अगर आपको इसका अब आउटपुट चाहिए, है ना, इस पे हम ये प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर है, इसमें हम कुछ इनपुट देते हैं यहाँ से और कुछ आउटपुट हम यहाँ पाते हैं। तो अगर आपको आउटपुट बाय इनपुट चाहिए, मतलब इसका h ऑफ ओमेगा चाहिए, है ना, मान लो y ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू y ऑफ ओमेगा, क्या होगा यहाँ पे y ऑफ ओमेगा होगा, यहाँ पे आपने इनपुट दिया x ऑफ ओमेगा, y ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू सॉरी y ऑफ ओमेगा बाय x ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू योर h ऑफ ओमेगा। h ऑफ ओमेगा क्या है आपका, ये इस सिस्टम का रिस्पॉन्स है। सो वी कैन डू इट, कैलकुलेट इट। आपको ये पता होगा कि ये कैसा होगा, 1/j⍵c होगा डिवाइडेड बाय r प्लस 1/j⍵c होगा। सो इसको यू कैन कैलकुलेट इट एज वेल बिकॉज सी 1 है, ठीक है, 1 प्लस r j⍵c, दिस वैल्यू विल कम। एंड अगर ये वैल्यू आ गई तो आपको, अगर देखिए कोई भी h ऑफ ओमेगा है उसका आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और फेज भी मिलेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन निकालें तो आ जाएगा 1/√1 प्लस r⍵c का होल स्क्वायर, है ना, ω_r⍵c बोल सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है। तो अगर आप इसका अब आप इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखें तो आप ओमेगा की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू 1 आएगा, है ना, 1। ओमेगा की वैल्यू 0 रखिए, फिर ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। तो ऑब्वियसली बात है इनफाइनाइट वैल्यू पे ये वैल्यू 0 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो वंस की वैल्यू क्या होगी, जैसे ओमेगा की वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाते गए तो ऑब्वियसली है कि ये वैल्यू कितनी होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी कम होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, ऐसे करके ये वैल्यू कहीं ना कहीं जाके ये 0 पे जाएगी, है ना, ये वैल्यू कहीं ना कहीं 0 पे जाएगी। तो कब ये इसका कुछ कट ऑफ भी होगा क्या, मतलब किसी वैल्यू पे, तो देखिए r की वैल्यू अगर आप ω_c रख दें, r की वैल्यू हम लोग सॉरी r की वैल्यू हम लोग 1/ω_c रखते हैं, विल कीप r इज इक्वल टू 1/ω_c, तो ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1/1 प्लस 1 मतलब 1/√2, तो 1/√2 हमारा 3 dB फ्रीक्वेंसी होता है। तो बेसिकली जिस फ्रीक्वेंसी पे मतलब हमारा, या फिर इसको आप ऐसा कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू आप लिख लीजिए 1/RC कर लीजिए, 1/RC, और ये ओमेगा
को आप मान लीजिए कि ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये एक 3D फ्रीक्वेंसी है, ये मान लीजिए ये तो ओमेगा का ही लाइन है, उसमें एक कहीं ना कहीं ओमेगा सी भी होगा। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये अपना 3 dB पोर्शन को अचीव करेगा, मतलब अपने 70% पोर्शन को अचीव करेगा। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी इतना। तो अल्टीमेटली देखिए ये जो पर्टिकुलर होगा माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी, ये इसका पर्टिकुलर लो पास फिल्टर का बैंडविड्थ होगा, मतलब इतने ही पोर्शन को वो पास करेगा, है ना। लो पास फिल्टर, व्हाट वी आर डीलिंग विद लो पास फिल्टर आप देखेंगे यहाँ पे, तो लो पास फिल्टर में हम यही तो चाह रहे थे कि पर्टिकुलर माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी तक ही वैल्यू पास हो, बाकी सब स्टॉप हो। तो हम ये चाह रहे हैं कि देखिए अगर आप कोई गिविंग इनपुट टू अ आर एंड सी सर्किट इज देयर, and whenever you are giving input to a RC system, so वी नॉट से आरसी सिस्टम बिकॉज इसी से हम हाई पास फिल्टर भी बना सकते हैं, बट ये ऐसा कॉन्फ़िगर अपन किए तब हम विल गेट सम आउटपुट। अब हम क्या देख रहे थे यहाँ पे, बीच का जो सिस्टम है आपका आर और सी का, जो हमने बीच का सिस्टम बनाया है, फिल्टर बनाया है, उसका ये जो है ये कितना आ रहा है, मतलब माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें ये पास कर रहा है, ये तो अच्छी वैल्यू को मतलब पास कर रहा है ना, बाकी सब तो वैल्यू अपने आप जीरो हो रहे हैं। अगर हम और दूर तक जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वैल्यू तो बहुत कम मिलेगी। तो हमको जितने में 70.7% वी आर गेटिंग आउटपुट, उतने को हम 3 dB फ्रीक्वेंसी मानते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 1/√2 का आप वैल्यू लेंगे लॉग में तो आपको 3 dB मिल जाएगा। तो इसको 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या फिर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं कि ये आपका ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिसमें हम लोग पास बैंड जो मेन कंपोनेंट है उसको हम पास करने दे रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली फिजिकली रियलाइजेबल योर लो पास फिल्टर, है ना। इट इज नॉट एज आइडल लो पास फिल्टर बट इट इज अ प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर। तो आप अगर आइडल एक सिस्टम का रिस्पॉन्स देखें और प्रैक्टिकल का देखें तो आपको यही फर्क पड़ेगा कि प्रैक्टिकल में मैं आपको क्या बोला था, देखिए आइडल में क्या बोला था कि एक लो पास फिल्टर ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ माइनस ओमेगा सी टू ओमेगा सी इट विल ओनली पास, अदरवाइज इट विल स्टॉप। मतलब ये क्या हो रहा था कि इसका जो पास बैंड एंड स्टॉप बैंड ट्रांजिशन था वो बहुत शार्प था, मतलब सडनली ओमेगा सी के बाद वो सिग्नल को काट देगा पूरा खत्म। और ये ऐसा नहीं है भैया, ये प्रैक्टिकल है। ओमेगा सी के बाद भी कुछ धीरे धीरे कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, ठीक है। ये सारे जो ये बैंड होता है इसको ट्रांजिशन बैंड बोलते हैं, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला जो पोर्शन होता है पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच वाला पोर्शन। तो ये शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। प्रैक्टिकल आप सिस्टम को देखेंगे इट डज नॉट हैव अ शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए शार्प है, बेसिकली पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में एक शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये है आपका प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर। तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि तो फिर हम लोगों को तो अल्टीमेटली जब बैंडविड्थ की बात आती है, व्हेन एवर वी से बैंडविड्थ, तो दो तीन आता है। एक तो बैंडविड्थ ये भी हो सकता है कि आप पूरे के पूरे इनफाइनाइट बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं। इनफाइनाइट बैंडविड्थ का मतलब समझ रहे हैं, एवरी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एवरी फ्रीक्वेंसी में क्या कंपोनेंट में कुछ कुछ परिवर्तन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट बैंडविड्थ। मतलब इनफाइनाइट ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी पास्ड थ्रू द सिस्टम। ये पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट, ये आइडल डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन में ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा इनफाइनाइट बैंडविड्थ कैसे पॉसिबल होगा। तो हम लोग फिर क्या लेते हैं, हम लोग कुछ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऐसा देखा, ये हमारा ये पहले ये देखा है ना जिसमें शार्प कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था। तो ये हम लोग शार्प फ्रीक्वेंसी वाला बैंडविड्थ लेते हैं जिसमें पर्टिकुलर उतने ही पास होते हैं, उसके बाद इट डज नॉट अलाउ। और तीसरा टाइप का बैंडविड्थ जो होता है वो होता है 3 dB बैंडविड्थ। 3 dB बैंडविड्थ का मतलब होता है कि जिसमें ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपका जो आउटपुट है ना, जो भी आपका आउटपुट है उसका 70.7% वाला पोर्शन को रख रहा है, बाकी सबको अलाउ नहीं कर रहा है। इतने पोर्शन में अपना काम बन जाता है। इतने ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी में अगर आप पास कर देंगे तो आपका मैक्सिमम 70.7% वाले आउटपुट में आपके पास आ जाएंगे, है ना। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए 10 रुपए दिया गया है ना, एंड आपके पास एक लिमिट है। इफ यू हैव लिमिट की हमको मान लीजिए 70% वाला लिमिट है कि हमको 70% खर्चा करना है, ठीक है।
70% में भी आउटपुट आ जाता है और 7 रुपए खर्च करके भी आपको बहुत बहुत सारा सामान मिल जाता है और आपको पूरा 10 रुपए तक खर्चा करना पड़ेगा तो भी आपको हो जाता है। तो क्यों ना हम 70% वाला ही ले लें, 7 रुपए में ही जब काम बन जाएगा तो 10 रुपए तक हम क्यों जाएं। तो वही बात है कि जब हम इनपुट देते हैं एक सिस्टम को, ठीक है, और हम आउटपुट चाहते हैं तो हम तो चाहते हैं कि पूरा का पूरा आउटपुट आ जाए, है ना, जैसा हम इनपुट दिए हैं वैसा टाइप का, मतलब जितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमारे इनपुट में है वो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आउटपुट में आ जाए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उसके लिए आपको इनफाइनाइट बैंडविड्थ वाले सिस्टम की जरूरत है जो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज ये करते हैं कि हमारा सिग्नल में बहुत सारा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जितना भी है, उसमें से 70% वाला ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हम पास करते हैं। ये है आपका 3 dB बैंडविड्थ, है ना। तो 3 dB बैंडविड्थ की हम अगर बात करें, 3 dB बैंडविड्थ की बात करें तो 3 dB बैंडविड्थ का मतलब होता है कि आपका जो मॉड ऑफ एच ओमेगा होगा, है ना, मॉड ऑफ एच ओमेगा मतलब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ ओमेगा इम्पल्स रिस्पॉन्स, वो आपका बड़ा होगा 1/√2 ऑफ एच ऑफ ओमेगा मैक्सिमम, है ना। मतलब इसका दिस कंडीशन व्हाट इट डज से यू दैट मॉड ऑफ एच ओमेगा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना, मैग्नीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका 1/√2 करेंगे, ठीक है। 1/√2 जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए ये वाला जो सिग्नल है, मान लीजिए ये है, इसका फाइनल क्या बोलते हैं पीक मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो इसका 1 का 1/√2 करेंगे तो होगा 1/√2 वैल्यू, है ना। मान लो होगा इसका, मान लीजिए 10 होता तो 10 का 1/√2 करते तो 10/√2 वैल्यू आता। तो 10 का 10/√2 मतलब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 8 7 6 ऐसा करके कुछ हो रहा, देयर मस्ट बी वैल्यू डिक्रीजिंग। तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो ये 10/√2 आएगा ना। उस 10/√2 वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसी को तो अपन 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे उसकी वैल्यू 3 dB आ गई दैट इज 3 dB फ्रीक्वेंसी। तो जो ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 dB को पास करते हैं और वैल्यू को पास करते हैं उसको 3 dB बैंडविड्थ कहते हैं। तो अल्टीमेटली ये वाला जो कंडीशन है कि मॉड ऑफ एच ओमेगा जो आपका टोटल मैग्नीट्यूड है वो हमेशा बड़ा होगा 1/√2 से, मैक्सिमम के 1/√2 से। ऑब्वियसली ये चीज तो हो गई, है ना। तो देखिए अब इसका फायदा कहाँ है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, आपको एक क्वेश्चन से अपन समझते हैं इसको। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, you have been asked this type of signal is there, okay, this is in frequency, this is in frequency, और आपको ऐसा बोल दिया है कि ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा है, ठीक है, ओके, एंड दिस इज योर let's suppose this is your peak magnitude, let's suppose 1 magnitude is there, और आपका ये वाला जो वैल्यू है this is this value is 1/√2। अगर ये वाला जो टॉप वैल्यू है ये 1 है तो दिस इज योर 1/√2 वैल्यू, ओके ओके फाइन। अब आपको ये ना बोला जा रहा है कि फाइंड 3 dB बैंडविड्थ ऑफ RC लो पास फिल्टर, ओके। ये ना ये क्या है, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ RC लो पास फिल्टर। ये RC लो पास फिल्टर का एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाया गया है, इसमें आपको 3 dB बैंडविड्थ निकालना है। अब देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ आया, कॉन्सेप्ट ये आया कि हम लोगों ने जो इतना देर से पढ़ रहे थे वो अब न्यूमेरिकल फॉर्म पे आ गया। अब हमको निकालना है 3 dB बैंडविड्थ निकालना है। 3 dB बैंडविड्थ कैसे निकलता है, तो आपको ये पता है कि देखिए मॉड ऑफ एच ऑफ ओमेगा, ठीक है, आपका ये एच ऑफ ओमेगा है ना, इसका अगर हम मॉड निकालें, ठीक है, मॉड निकालें तो ऑब्वियसली बात है कि ये वैल्यू जो होगी वो 1/√2 ऑफ एच ओमेगा का जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे हमेशा बड़ी होगी, है ना, बड़ी होगी, अच्छी बात है। लेकिन एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की अगर अपन बात करें, एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जहां पे भी कट ऑफ होगा वहां पे तो ये बराबर होगा, ऑब्वियसली बराबर होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया एट दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी पे तो ये वैल्यू इतनी ही है ना, मतलब ये 3 dB है तो 1/√2 वैल्यू है ना। तो एच ऑफ ओमेगा का मैक्सिमम का 1/√2 वैल्यू कब आएगा, जब एच ऑफ ओमेगा सी पे आएगा। एच ऑफ ओमेगा का जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू जब ओमेगा सी होगी तब ये वाली दिस कंडीशन विल कम, ओके। सो ये कब आएगा,
हमको ये पता है कि आरसी लो पास फिल्टर का एच ऑफ ओमेगा क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा आर सी, है ना, यही होता था अगर आप देखें मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ ओमेगा। लेकिन यहाँ पे ओमेगा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ओमेगा सी की बात हो रही है, तो ओमेगा सी लिख देते हैं और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे 1/√2, है ना। और एच ऑफ ओमेगा मैक्सिमम कितना है, एच ऑफ ओमेगा मैक्सिमम अगर आपको पता है तो यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे हम 1 वैल्यू लिख देते हैं। ये 10 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे √2 जाएगा उधर और यहाँ पे आएगा 1 बाय प्लस ओमेगा सी आर सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको आप ओपन कर सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा सी आर सी का होल स्क्वायर, जिसमें आप इसको ओपन करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा सी शुड बी इक्वल टू 1 बाय आर सी। देखिए ये है फाइनल आपका आउटपुट, मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आपका एक देयर इज अ आर एंड देयर इज अ सी, है ना, और यहाँ पे आपका आप ले रहे हैं, दिस इज योर लो पास फिल्टर। और लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आप कोई बोलता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब 3 dB फ्रीक्वेंसी, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 3 dB फ्रीक्वेंसी। तो 3 dB शब्द से आपको समझ में आना चाहिए कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का 3 dB वैल्यू मतलब 70% वाली वैल्यू जिस फ्रीक्वेंसी पे आ जाए उसको हम लोग 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, तो आप क्या करिएगा, जो भी आर की वैल्यू है, जो भी सी की वैल्यू है, वो आप तो अल्टीमेटली आप समझ पा रहे हैं क्या कि फिजिकल कंपोनेंट आपने मार्केट से यू हैव परचेज्ड आर वैल्यू, एक रेजिस्टेंस लिया, यू हैव टेकन सी वैल्यू। अगर आपको दोनों का इफ यू नो बोथ वैल्यू आर एंड सी वैल्यू, यू कैन मल्टीप्लाई एंड इनवर्स ऑफ इट विल बी योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको समझ में आ जाएगा कि इस आर को एंड इफ सी को हमने कनेक्ट किया, व्हेनेवर वी कनेक्ट आर एंड सी वैल्यू लाइक दिस, एंड देन वी इफ वी पास आवर कोई भी सिग्नल को हम पास करते हैं तो उसका एट ओमेगा सी की वैल्यू पे इट विल हैव अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट विल हैव अ 70.7% वैल्यू, सो दैट विल बी योर 3 dB फ्रीक्वेंसी, है ना। अब आपको इसी का एक और क्वेश्चन से अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं कि और कैसे तरीके से हम इसका इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलता है कि आपको अगर इफ यू हैव बीन गिवन f ऑफ t इज इक्वल टू लेट्स सपोज 4 सैम्पलिंग ऑफ 2t, है ना, 4 सैम्पलिंग ऑफ 2t अगर आपको दिया हुआ है एंड यू हैव बीन आस्क्ड फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। अब आपको बोलता है यू हैव बीन आस्क्ड दैट, आपका क्वेश्चन है f ऑफ t, ये सीधा सीधा बोल रहा है कि f ऑफ t इज नथिंग बट 4 इनटू सैम्पलिंग ऑफ 2t, ये आप दिस हैव बीन गिवन इन योर क्वेश्चन। अब आपको उसका बैंडविड्थ कैलकुलेट करने बोलता है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने बहुत सारा सिग्नल सिस्टम पढ़ा है, लेकिन अब आपके दिमाग में आता है कि भैया 4 सैम्पलिंग ऑफ 2t ये किस डोमेन में है, इसका जो डोमेन है ये है आपका टाइम डोमेन में, ये सिग्नल टाइम डोमेन में दे रखा है। ऑब्वियसली टाइम डोमेन में हम बैंडविड्थ कैलकुलेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कैलकुलेट बैंडविड्थ इन टाइम डोमेन बिकॉज बैंडविड्थ इज द ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच आर अलाउड टू पास, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इन टाइम डोमेन। तो हम टाइम डोमेन में कैसे कैलकुलेट करें, तो हमको इसका टाइम डोमेन सिग्नल निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है ना कि सैम्पलिंग ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले तो हमारा क्या बनता है, सैम्पलिंग ऑफ टी का अगर आप लें तो ये बनता है कुछ ऐसा, -1 से 1 इंटू पाई वैल्यू, ये है आपका सैम्पलिंग ऑफ टी की वैल्यू। इसी में अगर हम लोग सैम्पलिंग ऑफ 4t कर दें तो क्या बन जाएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले तो आपको पता है ना कि अगर f ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा होता है तो f ऑफ 4t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/4 f ऑफ ओमेगा बाय 4 मीन्स compression in time domain will lead to expansion in the frequency domain। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया है ना। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, सॉरी इसको हम एक काम करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सीधा लेते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है, ओके ओमेगा 4, तो यहाँ पे हो गया आपका -4 और ये हो गया π/4, ठीक है। अब इसी में 4 भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमको चाहिए 4 सैम्पलिंग ऑफ 4t, तो 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये कटा, तो फाइनल आपका आंसर आ गया इसको इसमें 4 सैम्पलिंग ऑफ 4t, Fourier transform will be minus 4 to 4
पाई। अब ये दिस इज योर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पार्ट। अब आपको बोल रहा है कि भाई यही 4 सैम्पलिंग ऑफ 4t का आपको बैंडविड्थ निकालना है, तो आप निकाल सकते होंगे मेरे ख्याल से। ओके, आई थिंक हम लोगों ने क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर सैम्पलिंग ऑफ 2t, तो अब कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन में को ही चेंज कर देते हैं, 4 सैम्पलिंग ऑफ 4t कर दीजिए, ठीक है। ओके, सैम्पलिंग ऑफ 2t, 4 सैम्पलिंग ऑफ 4t कर दिए, ओके फाइन। तो 4 सैम्पलिंग ऑफ 4t का हमको बैंडविड्थ निकालना था, तो हमको पाई माइनस 4 से 4 आ गया, तो बैंडविड्थ इसका कितना हो गया, बैंडविड्थ इसका हो गया माइनस 4 से 4 कितना हो गया, 8 है ना। तो 8 रेडियन पर सेकेंड हम इसका बैंडविड्थ है। और अगर आपको इसको हर्ट्स में चाहिए होगा तो आपको क्या करना है, इसको 2 पाई से डिवाइड कर देना है ना। तो 8 को 2 पाई से डिवाइड कर दिए तो आप इसको हर्ट्स में लिख सकते हैं। तो इस सिग्नल का मीन्स सैम्पलिंग ऑफ 4 सैम्पलिंग ऑफ 4t का जो सिग्नल है, उस सिग्नल का जो बैंडविड्थ है वो 8/2 पाई है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग 6 ऑफ सैम्पलिंग स्क्वायर ऑफ 3 इंटू टी, ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है e टू द पावर माइनस ATU ऑफ t, इसका भी आपको निकालना है बैंडविड्थ, ठीक है। इसका बैंडविड्थ आप निकाल के देखिएगा। अगर बैंडविड्थ आपको ना निकले, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप देखिएगा कि क्या है इसका बैंडविड्थ। 3 dB में भी निकाल सकते हैं, 3 dB या आइडल बैंडविड्थ, दोनों यू कैन चेक इट। सो ठीक है, इसका दोनों निकाल के देखिएगा, आइडल और 3 dB, अगर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे कि एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होता है, और हम कोरिलेशन ऑफ द सिग्नल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अगर आपको इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड हिट द लाइक बटन, and do share it, because how many students it will go, it will be shared, then that much needy students will get benefited. So thank you so much, tata bye bye, see you, have a good day.